Today we are going to discuss about the impact of chemistry on the development of forensic science and its contribution and the challenges faced by it. Whenever there is a crime, there will be an investigation. And whenever there will be an investigation, there comes the role of forensic science. And whenever there is a forensic science, there come the role of chemistry. Okay. And if the chemist play his role properly, then we can expect about the justice. Okay. Now, whenever there is investigation, there will be investigation agency involved, maybe a local police or CID or CBI or some other agencies like NIA or any other agencies. So जब भी हम देखते हैं कि investigation होता है, so there will be investigation agencies involved. Okay, and whenever there is investigation, sometimes the investigation cannot be completed by investigation agency alone. They need the help of some forensic scientist. So there will be another role of forensic science. So this person you might be knowing. मैं भी इन्हें पहली बार ही जब ये सीरियल देखा तो मैंने भी उनको पहली बार उसमें ही देखा. नाउ जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि अल्कोहल पर और ड्रग्स पे थोड़ा फोकस करेंगे. सो नेक्स्ट इज अल्कोहल. व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन अल्कोहल? बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्राइम्स इन इंडिया और इन अक्रॉस द वर्ल्ड दे आर कंज्यूम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सॉरी दे आर कमिटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल. दैट इज व्हाई अल्कोहल इज मच important. Okay, now these are the 7 Ds of the alcohol. If a person consumes very less amount of alcohol, is decent. Okay, and as the quantity of alcohol present in the blood increases, you can see here on the picture how he is behaving. The human, from human he will turn into animal. So yeah, this is the game of concentration. Higher the concentration of alcohol, then its situation will become more and more critical. आप देख सकते हैं यहाँ पे this decent man, okay, nicely dressed, nicely is doing. As again the concentration is increases, automatically he will move to different stages. Or generally जो higher stages है, suppose this stage or this stage, okay, he can commit the crime. Am I audible? Yes, sir, you are audible now. Okay. So dear students, generally जो crime होते हैं, generally they don't commit crime in this case. Okay, if there is this much concentration present, then hardly the person may commit crime. But same person, nice person, when it reaches to here or here, there is a strong possibility that he or she may commit the crime. Again, in this phase, the possibility of committing crime is less because he cannot handle his own body. वो अपने आप को handle नहीं कर सकता. So how can he or she commit the crime? So इस तरह से कौन से phase में? So here concentration plays the important role. Concentration of alcohol present in the blood. Or whenever there is a concentration, there is a role of chemistry and contribution of chemistry. So these are the 7 Ds: descent, delighted, delirious, dazed, dejected, dead drunk, and dead. Okay. So these 7 Ds are very famous about the alcohol. नेक्स्ट. सो एवरी ईयर वी कम अक्रॉस सच काइंड ऑफ न्यूज. हर बार ऐसे न्यूज आते हैं, आपके टाइप में इधर भी आते होंगे, अलग अलग स्टेट से आते हैं. सो hundreds of people lost their lives in such kind of events. Generally such kind of events, the methanol is most of the times responsible for the such kind of deaths. Okay, so मिथेनॉल पॉइजनिंग का एक इम्पोर्टेंट ये है, मैं आपको बता देता हूँ. सो मिथेनॉल एंड इथेनॉल पॉइजनिंग आर डिफरेंट. सो मिथेनॉल पॉइजनिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लॉस ऑफ विजन, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन. आपने कभी सुना है इस तरह का न्यूज कि जहरीली शराब से डेथ हो गया? सुना होगा कभी ना कभी. हाँ, it comes every year, this news. Yeah, sir. So in normal chemistry laboratory we never think ethanol is also alcohol, methanol is also alcohol. So what is the difference? Okay, only one CH2 is more present in ethanol, but chemically it is quite different. Particularly forensic point of view, most of the cases methanol is responsible for the deaths. Methanol immediately causes the loss of vision, either partial or complete loss of vision, because methanol damages the optic nerve. मिथेनॉल जो है सीधा आपका ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है. दैट्स व्हाई इट इज रिस्पांसिबल फॉर द लॉस ऑफ विजन. सो व्हेनेवर यू यूज मिथेनॉल, प्लीज बी केयरफुल. सो आप बोलेंगे सर हम तो अल्कोहल नहीं पीते हैं, हमें अल्कोहल से क्या काम है? सो रिमेंबर अबाउट 2 or 3 years back when the corona time was there, everyone was using the sanitizers. If I am not wrong, every institute, government institute, private institutes, the sanitizers was placed. That time heavy demand was there. So many companies, local companies were emerged, and they, instead of ethanol, they used the methanol there. अगर आपने यूज किया होगा, just imagine if you use that methanol mixed hand sanitizer for sanitizing your hands,
for longer time, 3 or 4 or 5 times a day, or 7 times a day for 6 months or 1 year, definitely it will affect the vision of that person. आई होप आपने कभी ना कभी इस बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा कि मिथेनॉल कितना डेंजरस है. ये पता था आपको ये स्टूडेंट्स कि मिथेनॉल विजन डैमेज करता है करके? Yes, sir. ओके, बहुत अच्छी, वेरी गुड, नाइस टू नो फ्रॉम यू. सो थोड़ा सा इस बारे में हमेशा जब भी आप लैब में मिथेनॉल यूज करें तो बहुत ध्यान से यूज करें. अगेन इफ यू नाउ ऑल्सो इफ यू आर यूजिंग सैनिटाइजर्स, सो बी केयरफुल दैट इट शुड नॉट कंटेन एनी ट्रेसेस ऑफ मिथेनॉल, बिकॉज फॉर लॉन्गर टर्म इट मे डैमेज द ऑप्टिक नर्व. और सपोज दिस टाइप ऑफ इवेंट happens around you and the person is complaining that he is partially losing the vision, immediately take that person to the hospital because he is suffered from methanol poisoning. Okay, वो बोल रहा है कि उसने शराब पिया है और उसको दिख नहीं रहा है, partially vision हो रहा है या blur हो रहा है. अगर blur भी हो रहा है then it is a methanol poisoning, so you can give him the medical help. Okay, the next part जैसे मैंने कहा था कि next I will talk about the drugs, chemistry of the drugs. So again every time we hear about the drugs के बारे में हम न्यूज में पढ़ते हैं, तरह तरह के ड्रग्स होते हैं. तो बेसिकली देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रग्स. दे कैन बी क्लास स्टिमुलेंट्स, hallucinogens, barbiturates and other drugs. Okay, so depressants, in case of depression, the heroin, morphine, brown sugar, opium, these are the examples of depressant drugs. ये तो सबने सुना ही होगा, हर बार हम देखते कि इतना हेरोइन इज अराउंड 7 करोड़ रुपीस पर केजी. देन स्टिमुलेंट्स में जो एग्जांपल्स है दैट इज कोकेन, एम्फेटामाइंस, मिथाम्फेटामाइंस, दिस काइंड ऑफ ड्रग्स आर कॉल्ड एज स्टिमुलेंट्स. In case of hallucinogens, LSD, that is lysergic acid diethylamide, mescaline, psilocybin, these are the examples of hallucinogens. Okay, then in case of barbiturates, the sleeping pills are the one of the examples of barbiturates. Basically barbiturates is a very huge category. In case of barbiturates, there are around 2500 derivatives of barbituric acid, out of which very few has a medicinal value. Rest of the barbiturates are abused by the drug abusers. Then some miscellaneous categories other drug, it includes club drugs, designer drugs and synthetic drugs. So drug chemistry एक total अलग ही area है. आप जब lab में पढ़ते होंगे आपकी chemistry, that is general chemistry, synthesis and properties and all other things, but drug chemistry totally different. And this kind of drugs are studied in the masters. हम masters में ये सब, हमारे यहाँ पे masters में ये सब drugs का study करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं इनके properties के बारे में, इनके symptoms के बारे में और इनके nature, whatever the points I told earlier, the nature, symptoms, fatal dose, fatal period, withdrawal symptoms and so on. Okay, shall we move forward? Yes, sir. Please continue. Okay, so these are, we would like to see the some of the plant based drugs. Now this is opium plant. Now this opium plant से ही आप morphine, opium plant से opium मिलता है जिसको अफीम बोलते हैं, और उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको मॉर्फिन मिलता है. मॉर्फिन से ही बाद में प्रोसेस करने के बाद यू विल गेट द हेरोइन and other drugs. Okay, so that's why heroin is so costly. Now you can see the plant capsules, the cuts are given on this capsule by the blade or razor or some knife, and the latex which is coming out from this, it is dried and then it is called as raw opium. Raw opium is processed to get the morphine, and later on morphine is converted into heroin. Heroin is nothing but the diacetyl morphine. And one more thing, do you know the difference between morphine, sorry, heroin and brown sugar? कभी आपने पढ़ा सुना होगा स्टूडेंट्स? एटलीस्ट मूवीज में देखा होगा, might have seen in some movies or something, serials or web series. Brown sugar and heroin. सर सुना है बट डिफरेंस जानता नहीं है. Okay. So दोनों सेम है, chemically both are same. So impure heroin is nothing but the brown sugar. So but दोनों की cost में बहुत difference है. Heroin is pure form and it's very costly. Brown sugar is comparatively cheaper and it is a impure form. उसमें impure होता है, impurities होती है, crude होता है, वो crude nature का होता है. So दोनों इसी plant से मिलते हैं.
नेक्स्ट इज कैनाबीज है, जिसको मारिजुआना है, गांजा वगैरह, चरस वगैरह जो बोलते हैं, वो इस प्लांट से मिलता है. कैनाबीज सटाइवा, कैनाबीज इंडिका, कैनाबीज मेक्सिकाना, these are the some of the species of this plant. The flowering tops of this plant are used for preparing of the cannabis. ओके, तो कैनाबिस प्लांट में अराउंड 450 के आसपास कंपाउंड्स होते हैं जो कि नार्कोटिक टाइप के इफेक्ट्स वहां पे प्रोड्यूस करते हैं. नाउ दिस इज वेरी फेमस अमंग द सम recent events you might have heard in the news. Some Bollywood celebrities were caught with the marijuana. नेक्स्ट इज मेस्कालिन. दिस इज अ पर्टिकुलरली अ कैक्टस. ये प्लांट है, इसमें मेस्कालिन नाम का ड्रग मिलता है. एंड दिस इज यूज्ड बाय सम ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज इन देयर फेस्टिवल्स. दे इसको लेते हैं, वो लोग चबाते हैं और रात भर डांस करते हैं, डांस एंड म्यूजिक उनके फेस्टिवल्स. पर्टिकुलरली कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज, नॉट इन इंडिया, पूरा दुनिया में ही उसको यूज करते हैं. तो इसके जो मेस्कल बटन्स होते हैं, इनको सुखा के फिर उसको चबा के वो यूज करते हैं. तो ये भी एक ड्रग है जो यूज किया जाता है. अनदर इज psilocybin. Now this mushroom is extracted to get the psilocybin. Now psilocybin is a hallucinogenic drug. इससे hallucinations आते हैं. Cannabis भी hallucinogenic है. Opium plant से depressant drug मिलते हैं. Mescaline भी hallucination type का drug है. Next is different types of drugs. Am I audible? Yes, sir. You are audible. Okay. So these are the different kinds of drugs just we talk about. And these are the some of the symptoms. Now these are not drug specific symptoms, these are common symptoms which are observed in a drug addict. अगर suppose you want to identify whether the person is drug addict or not, या जब हमारे पास कोई आता है तो हम कैसे identify करें? So constricted pupils, generally depressant की केस में if he or she is consuming the depressants means heroin, opium या ब्राउन शुगर कंज्यूम करता है तो प्यूपिल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, यानी जो आंखों के प्यूपिल्स है वो छोटे हो जाते हैं. स्टिमुलेंट्स, इफ समवन इज कंज्यूमिंग द स्टिमुलेंट्स द प्यूपिल्स आर डायलेटेड, बड़े हो जाते हैं. जैसे कि कोकेन लेता है, एम्फेटामाइंस लेता है, मिथाम्फेटामाइंस लेता है, तो उसके प्यूपिल्स नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में डायलेट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं. हेलोसिनोजेंस, if someone is consuming the LSD, mescaline, psilocybin, the person will have disorientation of time and space. Now when you say the time, you know the time, okay, उसको time का अंदाजा नहीं आता है. And when you say the space, space means two components, distance and direction. The person who consume the hallucinogens don't have any sense of time and space, means time, distance and direction. Space में दो कोऑर्डिनेट्स आते हैं, एक डिस्टेंस का कोऑर्डिनेट आता है और एक डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट आता है. तो ये दोनों ब्रेन का जो सेंस है वो लूज हो जाता है उस बारे में. मतलब आप सोचिए कि आपको हेलोसिनोजिन दिया और आप 8 घंटे से एक जगह पे पड़े हो और आपको पता ही नहीं, आपको लगा कि 10-15 मिनट हुए. आप आपके घर के पीछे होंगे, यू विल बी बिहाइंड योर हाउस एंड यू विल नॉट एबल टू come to front door because you don't have any सेंस ऑफ डायरेक्शन. और जब तक डायरेक्शन का सेंस नहीं होगा, डिस्टेंस का सेंस नहीं होगा, आप कहीं ट्रैवल ही नहीं कर सकते. ऐसे इंसान को आप ड्रग्स देने के बाद वो कहीं नहीं जा सकता, एक जगह पे पड़ा रहेगा. ओके, नेक्स्ट इज बार्बिट्यूरेट्स एंड अदर ड्रग्स. तो ये जनरली ये तो सभी इसमें होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, दिस ऑब्जर्व्ड, कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन मोस्ट ऑफ द ड्रग्स. सो सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स आई डिस्कस हियर. ओके, तो आप ड्रग एडिक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं थोड़ा सा. अगेन फ्यू मोर चीजें होती है उसमें. जनरली फाइनेंशियली वो काफी बर्डन में रहता है. द पर्सन विद कंज्यूमिंग द ड्रग जनरली हैज अ वेरी फाइनेंशियल बर्डन बिकॉज मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर एक्सट्रीमली कॉस्टली. A few milligrams drugs can cost about thousands of rupees, 10,000 rupees, 5,000 rupees. So financial behavior से भी पता कर सकते कि someone is consuming drugs or not. Okay, shall we move forward? Yes, sir. For the example, I have taken one drug, LSD. LSD जो है lysergic acid diethylamide. Since हम लोग केमिस्ट्री के लोग हैं तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करेंगे. Why it is depressant? यस सर, पहले वाला जो था ना, पहले वाला जो था ना, हाँ, हाँ. Why it is depressant, sir? no, depressant Number one. Okay. Yeah, just a minute, sir. Oh, these are depressant, sir. Okay. Sir, depression means क्या होता है उसका? Depressants depress the central nervous system, sir. They will slow down your BP. They will slow down your heartbeat. Okay. So overall body, जैसे सोने के टाइम में सर पूरा शरीर शिथिल हो जाता है. So depressants generally slow down your heartbeat, slow down your BP and slow down your respiratory rate. That and पूरा entire thinking process को ही slow down कर देता है. They are called as depressants. Okay, sir. And stimulants
अगेंस्ट दैट उल्टा रिवर्स हो जाता है, दे विल BP and their heartbeat and respiration will fast करेंगे, they will become fast, rapid. So such type of drugs are cocaine and amphetamine. So these are the category, these are the examples. Means heroin is a different kind of drug and cocaine is a different kind of drug. But normally हम बोलते हैं कि heroin and cocaine and like that, but दोनों अलग अलग हैं, दोनों both are different drugs. And what is the misery that many drug abusers combine them, okay, heroin and cocaine, and they take it together. तो आप समझ सकते हैं कि कितना भयंकर होता होगा उनके साथ में. So if you take the heroin and cocaine together, then mixture is called as speedball. In drug abuse की language में it is called speedball. Now what to do with your brain? Brain को समझ में नहीं आता उसको stimulate होना है कि डिप्रेस होना है. तो इसीलिए जनरली ऐसी केस में डेथ ही हो जाती है. तो दे कंज्यूम मतलब दोनों मिला के कंज्यूम करते हैं. सो देन इट इज रियली वेरी डेंजरस. इज इट ओके सर? Okay, sir. Okay, sir. Okay. So these are just very few I am putting here कि depressants में constricted हो जाते हैं, stimulants में dilate हो जाते हैं. These are very specific. If you go in detail, every drug has very detailed symptoms are mentioned in the literature. Okay, so depression and anxiety is most commonly observed in most of the drug abuse irrespective of the drug. Okay, so one of the example we are discussing here, this is lysergic acid diethylamide, LSD. LSD is a very powerful drug and it comes under the category of hallucinogen. Dear students, आपने hallucinogens या hallucinations के बारे में कभी तो सुना होगा मूवीज वगैरह में या किसी इस तरह के hallucinations. हाँ सर. Okay, क्या होते हैं hallucinations? What is hallucination? सर रियल में जो नहीं होता वो दिखता रहता है. बहुत अच्छे, very good. So We this have is seen one it kind in a of movie. We have seen it in a movie, in Satyajit Ray's movie, Feluda's movie. So one Yes, person sir. is looking another two. One object is being seen two. Yes sir. Okay, that is a kind of hallucination, as far as our Yes, knowledge sir, is yes. concerned. Yes sir, yes sir. So seeing such things which are not existing, or even hallucinations are of two kinds. Dear students, hallucinations of two types: visual hallucinations and auditory hallucinations. सिर्फ दिखने से ही hallucinations नहीं होता है, आवाज आने का भी hallucinations होता है. Okay, so auditory hallucinations and visual hallucinations. So these kind of substance, hallucinogens, one of the example is in front of you, LSD. LSD is a very powerful hallucinogen. इससे visual और auditory दोनों type के hallucinations आते हैं. This was discovered by Dr. Albert Hofmann in 1938. But उनको खुद को ही hallucinations हो गए जब उन्होंने इसको बनाया, उनको ही hallucinations होने लगे. Okay, उसके hallucination effect जो है उनको 1943 में पता चले. This is the structure. Okay, so हम chemistry, ये उसका structure है. Now see, important thing is average effective oral dose कितना है देखिए, 20 to 80 माइक्रोग्राम. 20 to 80 माइक्रोग्राम एक टाइम पे लेने से वो जो ड्रग एडिक्ट है वो इट विल वेंट ऑन द ट्रिप. जब ड्रग एडिक्ट ड्रग्स लेते हैं और वो जो नशे का दौर रहता है उनका 5-6 घंटे का, उसको ट्रिप बोलते हैं. इट इज कॉल्ड एज अ ट्रिप. जैसे हम कहीं ट्रिप पे जाते हैं बाहर, वैसे वो एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं मेंटली. सो वो ट्रिप में जाने के लिए हाउ मच क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड? 20 to 80 माइक्रोग्राम क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड. एंड द इफेक्ट, वंस 20 to 80 माइक्रोग्राम इज टेकन, द इफेक्ट लास्ट फॉर 10 to 12 hours. And that person may say that he is hearing the colors. उसको कलर्स सुनाई देते हैं और आवाजें दिखाई देती है. वो बोलेगा कि इस तरह से बोल सकता है, बिकॉज उसको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं. और हेलुसिनेशंस में जो नहीं होता है वही दिखता है और जो नहीं होता है वही सुनाई देता है. नॉर्मल इंसान कलर देखते हैं और आवाजें सुनते हैं, लेकिन जो LSD लेते हैं उनको कलर्स सुनाई देते हैं. दे हियर द कलर्स एंड दे सी द साउंड्स. उनको साउंड्स दिखाई देते हैं. जैसे जनरली कार्टून में होता है कि कोई किसी की आवाज आ रही है और आपको दिख रही है, लेकिन ये एक्चुअली इन ड्रग एडिक्ट के साथ होता है. दे मे शेयर विथ यू सम, ओके, समवन इज शेयरिंग दैट कि उसको आवाजें दिखाई देती है या कलर सुनाई देती है. तो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट नोइंगली और अननोइंगली ही और शी इज कंज्यूमिंग द ड्रग्स. हो सकता है कि अननोइंगली किसी ने दिया होगा. सो डोंट इग्नोर देम, दे विल नीडिंग अ मेडिकल हेल्प. Okay, this drug is a very powerful hallucinogen. Therefore, there will be disorientation of direction, distance and time. Therefore, आप सोचिए किसी इंसान को अगर ये ड्रग दे दिए तो क्या होगा?
उसको ना डायरेक्शन का सेंस होगा, डिस्टेंस का सेंस होगा, ना टाइम का सेंस होगा। ओके, सो ऐसे में ये इस काइंड का ड्रग आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्या लगता है आपको स्टूडेंट्स? इट इज मिसयूज बाय द क्रिमिनल्स। क्या लगता है आपको, कब इसको यूज करते होंगे, किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं? जो भी आपको लगता होगा। वुमेन ट्रैफिकिंग। यस, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स। और ओके, एनीवेज, सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में यूज करते हैं किसी को, अगेन सी सपोज किसी के खाने में या पीने में मिला दिया, ड्रिंक में मिला दिया, फूड में मिला दिया, देन व्हाट विल हैपन, for 8 to 12 hours that person will be out of coverage area, just his situation will be a mobile which is hanged। जैसे मोबाइल या कंप्यूटर हैंग हो जाता है वैसे उसका ब्रेन हैंग हो जाता है 10 से 12 घंटे के लिए। उसको कोई सेंस नहीं, ही और शी डोंट हैव एनी सेंस ऑफ टाइम। ओके, वो बोलेगा कि आप 10 घंटे से यहाँ पे हो, लेकिन वो उसको लगा कि 10 मिनट से ही है। ओके, डिस्टेंस और डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है। सो आप उसको कहीं भी लेके जाओ उसको पता ही नहीं चलेगा। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में, अगेन जो सेक्सुअल क्राइम्स इन्वॉल्व होते हैं वहां पे भी जनरली इस तरह का ड्रग दिया जाता है। दिस इज एडमिनिस्टर्ड टू दैट पर्टिकुलर लेडी और ह्यूमन बीइंग, एंड देन आफ्टर दैट द फिल्म इज, जो फिल्म है या वीडियो बनाया जाता है उसका, क्योंकि उसको सेंस ही नहीं रहता कि उसके साथ क्या हो रहा है। 10 से 12 घंटे तक कितनी बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी भी बार उसको उसके साथ कोई भी क्राइम कमिट हो सकता है, उसका वीडियो वगैरह बना सकते हैं और उसको बाद में ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो इस तरह से कई बार इस तरह के केसेस रिपोर्टेड है। नो, ओवरडोज ऑफ दिस ड्रग कैन कॉज साइकोसिस, और जो उसका फैटल डोज है वो 15 मिलीग्राम है। देखिए, फैटल डोज यानी जानलेवा, लेकिन जो ड्रग अब्यूजर्स यूज करते हैं नशा करने के लिए, ओके, जस्ट फॉर अब्यूजिंग पर्पस, दैट इज 20 to 80 माइक्रोग्राम्स। ओके, शैल वी मूव फॉरवर्ड? Sir, Yes, sir. can I ask a question? Yeah, yes, why not, sure. Sir, you said that consuming the drugs, we will see some symptoms. If someone mistakenly consume a drug and he or she starts to see the symptoms, can we have any way to save ourselves at the starting point? ओके, सपोज नो वन इज देयर, उसके आजू बाजू में कोई नहीं है, ऐसी सिचुएशन में ना, नो वन इज अराउंड हिम, ही अलोन एंड ही कंज्यूम, एक्सीडेंटली कंज्यूम ड्रग। ओके, ओनली थिंग इज दैट वी हैव टू सीक सम हेल्प फ्रॉम एनी ट्रस्टवर्दी पर्सन और गो टू नियरेस्ट हॉस्पिटल, दैट इज द ओनली वे। Otherwise, after some time, when the drug will completely mix with your blood, you will be not in your own control. ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके किसी ट्रस्टवर्दी योर फ्रेंड और योर फैमिली मेंबर्स, यू हैव टू कांटेक्ट देम दैट mistakenly I have consumed the drug, and immediately take to the hospital. That is the only way you can save yourself. Is it okay? Yes, sir. Thank you, sir. Okay, so we'll move forward. Now see, ये stickers ne, just looks like a sticker. These are the basically drug abusers, drug peddlers. They prepare in this form, so no one will identify. ये stickers में छोटे छोटे आप देख सकते हैं squares है. This individual square is used for single trip. मतलब ये पूरा स्टिकर लेके वो 10-15 दिन तक ड्रग अब्यूज कर सकता है। इनका साइज अगेन ये छोटे छोटे बॉल्स में माइक्रो डॉट्स। ओके, तो ये पेपर वाला फॉर्म ये है, इम्प्रेग्नेटेड पेपर, माइक्रो डॉट्स वाला फॉर्म ये है, और स्क्वायर्स और जेलेटिन विंडो पेन्स में ये फॉर्म है। आपके सामने जो फॉर्म्स है छोटे छोटे ना, यू सी द कॉइन के कंपैरिजन में कितना छोटा है। दिस मच डोज इज यूज फॉर सिंगल ट्रिप, एक बार ट्रिप में जाने के लिए वो इतना छोटा क्वांटिटी में यूज करते हैं। सो अलग अलग फॉर्म में, स्टिकर्स के फॉर्म में या डॉट्स के फॉर्म में या इस तरह के फॉर्म में अवेलेबल है ड्रग्स, और कभी भी गलती से आपके खाने पीने में डाल सकते हैं। जरूरी नहीं आप कंज्यूम करेंगे, समवन जानबूझ के आपको ब्लैकमेल करने के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने के लिए, सपोज न्यू ईयर पार्टीज और सम अदर पार्टीज, अननोन प्लेस पे आप गए तो आपके साथ, या फिर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे तो आपके खाने पीने में इतना छोटा चीज तो आसानी से मिला सकते हैं। इट कैन बी वेरी इजीली मिक्स विथ योर फूड एंड यू विल बी नेवर नोइंग दैट व्हाट हैपेंड टू यू। आफ्टर कंज्यूमिंग दिस मच क्वांटिटी यू विल बी आउट ऑफ कवरेज एरिया फॉर 12 आवर्स। 10 से 12 घंटे आपको कुछ याद नहीं आएगा क्या हुआ आपके साथ में। सो दिस इज रियली वेरी डेंजरस। नाउ थोड़ा सा पिक्चर्स आपके लिए मैंने जानबूझ के डाले इनका, हालांकि केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं। तो सी दिस लेडी, जनवरी 2008 का पिक्चर है एंड अगस्त 2008 का, 8 महीने के अंदर उसका हालत आप देखिए, शरीर कैसे हो जाता है।
My screen is visible to you? Yes, sir. Visible. Yes, sir. So ये मैंने आप स्टूडेंट्स के लिए जानबूझ के डाला है ताकि गलती से भी कभी भी आप ड्रग्स के बारे में सोचे भी नहीं। अगर कोई सोच रहा होगा तो बिल्कुल मतलब, या आपके आजू बाजू में कोई होगा जो कंज्यूम करता है तो आप देख सकते हैं। दीज आर द यूएस स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट के वेबसाइट से ये पिक्चर्स मैंने लिया। आप देख सकते हैं कितना जल्दी 8 महीने में ऐसा लग रहा है 60-70 साल का डिफरेंस आ चुका है स्किन के अंदर, और कितना एजिंग फास्ट हो जाता है। सो इनका बचने का चांस लगभग ना के बराबर होता है। अगेन फ्यू मोर पिक्चर्स है फ्रॉम यूएस स्टेट डिपार्टमेंट्स। आप देख सकते हैं दिस पर्सन बिफोर कंज्यूमिंग द ड्रग एंड आफ्टर कंज्यूमिंग द ड्रग। हियर आल्सो यू सी पूरा स्किन जो है पूरा डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया स्किन का। They might have consuming some very powerful synthetic drug like heroin or some other drugs, or they might be consuming cocaine or heroin together. Okay, nowadays ऐसा है कि स्टूडेंट कॉलेजेस में और अलग अलग जगह पे थोड़ा फन करने के चक्कर में बहुत बार लोग कंज्यूम कर लेते हैं, बट ड्रग इज अ वन वे ट्रैफिक। आप सिर्फ कंज्यूम कर सकते, छोड़ नहीं सकते। छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। नाउ विड्रॉल सिम्टम्स। ओके, ड्रग्स अगर आपने नहीं लिया, सपोज समवन इज टेकिंग ड्रग्स फॉर 4 months और 5 months एंड वन फाइन डे उसका फैमिली को पता चल गया, फैमिली मेंबर्स कम टू नो दैट ही इज कंज्यूमिंग ड्रग और शी इज कंज्यूमिंग ड्रग, देन द फैमिली लॉक्ड हिम इनसाइड अ रूम। ओके, अब उसको ड्रग्स नहीं मिलेंगे। सो ड्यू टू दैट जो साइड इफेक्ट्स उसके ऊपर होते हैं वो उसको बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम्स। ड्रग्स नहीं लेने पर जो सिम्टम आते हैं उसको विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं। जैसे कि चाय नहीं पीने पर आपको सर दर्द होता है, यू मे हैव हेडेक if not drinking the tea, that is the withdrawal symptom of tea. If tea is a very less powerful, okay, cocaine or heroin are 10,000 or 20,000 times more powerful as compared to your tea. So you can imagine कितने powerful symptoms आते होंगे। तो ये मैंने for example के लिए I have put here cocaine bugs. Okay, the person who is consuming the cocaine for some months or some days, okay, if he or she does not consume the cocaine, she or he has a withdrawal symptoms of cocaine bugs. Okay, उसको ऐसा लगता है कि insects are crawling under his skin. ओके, इंसेक्ट्स आर क्रॉलिंग अंडर हिज स्किन। अंदर यहाँ पे तो बाहर दिखाए लेकिन उसको ऐसा लगता है कि स्किन के अंदर कीड़े जा रहे हैं। ओके, और पूरा स्किन के अंदर घूम रहे हैं। ओके, इस तरह की पेनफुल फीलिंग आती है, पूरा स्किन के ऊपर इचिंग आता है। ओके, आप इमेजिन करके देखिए कि आपको ऐसा फील हो रहा है। ओके, आप बोलोगे उसको कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे शरीर में कोई कीड़े नहीं, लेकिन उसके लिए वो एक्चुअल है, आपके लिए इमेजिनरी लेकिन उसके लिए एक्चुअल है। तो इतने पावरफुल सिम्टम्स आते हैं। सो जनरली अगर ड्रग एडिक्ट को ड्रग्स नहीं दिया तो जनरली दे कमिट द सुसाइड कमिट कर लेते हैं, क्योंकि इतना दर्द सह ही नहीं सकता। दे कैन नॉट विथस्टैंड दिस काइंड ऑफ पेन। ओके, एक मूवी में भी ये सीन दिखाया गया है, अगर आपको याद होगा, हिंदी मूवी है बॉलीवुड की, किसी ने देखिए, वो सम हीरोइन इज देयर, उसको खाने के अंदर उस एक्ट्रेस को कुछ दिया गया तो वो पूरा उसको कॉकरोचेस का फीलिंग आता है कि वो पूरा बेसिन में से कॉकरोचेस निकल रहे, कपड़ों के अंदर से कॉकरोचेस निकल रहे। देखा है किसी ने? इट्स अ बॉलीवुड मूवी। ओके, तो एक है एक मूवी आपने शायद देखी होगी, उसके अंदर ये दिखाया गया। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Okay. So only thing is that suppose in your vicinity or in your neighborhood someone is consuming the drugs cannot be left directly, उसको step wise ही withdraw करना पड़ता है। तो आप ऐसा गलती नहीं करना कि उसको कमरे में बंद कर दिया, ऐसा नहीं करना। उसको विड्रॉल जो सेंटर आता है, रिहैब सेंटर, वहां पे डालने का, और स्टेप बाय स्टेप ही ड्रग्स विड्रॉ कर सकते हैं। एक दिन में ड्रग्स नहीं छोड़ सकते। तो ये बताने का इसलिए बताया मैंने कि कोई भी अगर ड्रग एडिक्ट है तो उसको एकदम से ड्रग बंद नहीं कर सकते, उसका डेथ हो सकता है। ओके, उसको हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि उसको आदत है ड्रग लेने का, और नहीं लिया वन डे तो उसका हार्ट अटैक आ सकता है, सुसाइड कर सकता है, या फिर आपको मार सकता है। सो उसको बहुत प्रॉपरली ट्रीटमेंट करना पड़ता है, रिहैब सेंटर भेजना पड़ेगा, और फिर वहां पे स्टेप वाइज उसका विड्रॉल करेंगे धीरे धीरे। और वो भी अगर विड्रॉल तब होगा अगर उसका विल पावर बहुत स्ट्रांग है तो ही हो पाए। Now, for your information purpose, I have mentioned some of the fatal dose and fatal period of some of the common poisons. Ethanol का देखिए fatal dose 150 to 250 ml है प्योर इथेनॉल का, और fatal period यहाँ पे 12 to 24 hours। मिथेनॉल का देखिए कितना कम है, इट्स ऑलमोस्ट 1/4 है। ओके, 60 to 240 ml। ओके, काफी कम है, लोअर साइड में देखिए काफी कम है। 240 लगता ही नहीं है, जनरली 60 ml में ही काम हो जाता है। सो इट्स रियली वेरी डेंजरस मिथेनॉल। इसका फेटल पीरियड सेम है 12 to 24 hours। कैम्फर
कैम्फर यानी हर पूजा घर में हमारे घर पे होता है. सो कैम्फर इज ऑल्सो पॉइजनस सब्सटेंस. ओके, बस इसका फैटल पीरियड अनसर्टेन है. ओके, अगेन इसका जब आप यूज करेंगे तो बहुत केयरफुली यूज करना है. कैम्फर इज इनसोल्यूबल इन वाटर बट इट इज ऑयल सोल्यूबल. सो और आप जानते हैं कि पूजा घर में ऑयल तो होता ही. आप जब लैंप लगाते हैं, दिया लगाते हैं, तो ऑयल यूज करते हैं, उसके साथ में कैम्फर यूज करते हैं. तो ये दोनों मिक्स होने के बाद ये स्किन से रैपिडली एब्सॉर्ब होता है. It causes the toxicity. Camphor is particularly more toxic to pregnant ladies. So they should not use camphor during the pregnancy because it crosses the placenta and causes the embryo toxicity. Am I audible? Yes, sir. ओके, सो आप जब भी कैम्फर यूज करेंगे बहुत केयरफुल यूज करना है. ऑयल के साथ जब कैम्फर, ऑयली हाथ है तो उसे कैम्फर नहीं छूना है, वो स्किन में चले जाएगा. इट्स हाईली लिपोफिलिक इन नेचर, इट्स ऑयल सोल्यूबल एंड पर्टिकुलरली इन केस ऑफ प्रेग्नेंट लेडीज इट कैन कॉज एम्ब्रियो टॉक्सिसिटी. सो दे शुड यूज कैम्फर वेरी केयरफुली. ईथर का केस में 8 to 16 ml है. कोकेन, ओके, इट्स अ नार्कोटिक ड्रग, 1 to 1.5 grams एंड यू सी द टाइम 2 to 3 hours. तो अभी एक स्टूडेंट ने पूछा था ऐसे गलती से कुछ हो गया तो आपके पास 2 से 3 घंटे है. So immediately the moment you come to know that कि आपके साथ ड्रग हो गया है तो immediately घर पे फोन कर दीजिए, किसी भी अच्छे इंसान को फोन करके बुला लीजिए, या फिर आप खुद जा सकते हैं तो खुद जाइए हॉस्पिटल में. वही एक तरीका है जिससे हम बच सकते हैं. नेक्स्ट इज बार्बिट्यूरेट्स. इट इज प्रेजेंट इन स्लीपिंग पिल्स 1 to 2 grams और फेटल डोज 1 to 2 days. सो जनरली बार्बिट्यूरेट्स में ओवरडोज की वजह से डेथ होती है, फिर सुसाइड करते हैं लोग, तो वहां पे बार्बिट्यूरेट दे कंज्यूम. एम्फेटामाइंस में 1 to 2 grams होता है एंड LSD में 15 milligram होता है. Sir, any data for marijuana? सर लैब में तो बहुत, सर ऑर्गेनिक लैब में तो बहुत ज्यादा ईथर यूज होती है. तो सर हाँ, बट आप ऑर्गेनिक लैब में जो काम होती है ना, Yes, sir. उसमें तो बहुत ज्यादा ईथर यूज होती है ना उसमें. हाँ, प्योर ईथर है. इट शुड 8 to 16 ml should reach to your stomach in liquid form. स्टोमक, यस. नॉट लंग्स. हाँ, लंग्स में भी होगा बट अगेन पीपीएम में काफी हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा तो होगा. बट सर व्हेन यू एक्सपोज टू फॉर लॉन्गर टाइम टू ईथर, और थोड़ा सा हेडेक तो होता ही है सर, थोड़ा सा डिजीनेस फील होता है, हेडेक होता है. ठीक है, अगर लॉन्गर एक्सपोजर होगा डेथ की ना, दिस इज फैटल डोज. ओके, सो फैटल डोज काफी हाई होता है. ओके सर, ओके सर. ओके, सो थोड़ा सा साइड इफेक्ट के सिम्टम्स स्मॉलर कॉन्सेंट्रेशन में आ सकता है. Sir, any data for marijuana? मारिजुआना के अलग अलग फॉर्म्स है सर. हर्बल फॉर्म में अलग है, और उसके बाद में उसका जो CBD ऑयल वगैरह है वो उसके, और या फिर जो उसको बोलते हैं चरस, उस फॉर्म में थोड़ा अलग अलग है. अभी मैंने यहाँ पे डाला नहीं है, लेकिन कुछ ग्राम्स में ही होता है. ओके, मतलब जो चरस है, ओके, उस केस में ज्यादा कम क्वांटिटी होगी, लेकिन जो फ्लावर लीव्स है उस फॉर्म में, रॉ फॉर्म में काफी हाई क्वांटिटी में लिया तो ही होगा. वैसे जनरली उतना फेटल नहीं होता है बट एडिक्टिव होता है. जनरली डेथ नहीं होती मारिजुआना केस में, इमीडिएटली डेथ नहीं होती. और सर एक कहावत है कि जो marijuana रेगुलर लेते हैं उसको अगर सांप काटे तो उसका डेथ नहीं होता. ये क्या सही है? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है, वो मिथ होगा. ये सुना है, लोक में कहावत है ये. नहीं, वो अभी रेगुलराइज करने के लिए बोलते हैं ड्रग एडिक्ट्स, दे से दैट कि नहीं होता है, बट ऐसा कुछ नहीं. देयर इज नो रिलेशन, बिकॉज स्नेक पॉइजन इज आल्सो डिफरेंट टाइप्स ना सर. न्यूरोटॉक्सिक स्नेक होता है या कार्डियोवास्कुलर पॉइजन होता है. हेमोटॉक्सिक होता है. सो स्नेक्स भी अलग अलग टाइप के है, तो पॉइजन अलग टाइप का है. न्यूरोटॉक्सिक वेनम है तो अलग तरह से एक्ट करेगा, कार्डियोवास्कुलर है तो अलग तरह से एक्ट करेगा, मायोटॉक्सिक है तो अलग तरह से एक्ट करेगा. सो वी नेवर से दैट कि वो किस तरह से एक्ट करेगा. मारिजुआना हर all these drugs you have shown here all belong to the category of steroid, na? No, sir, they are different. Just for example purpose, I have taken from different categories. No, camphor is organic compound, ethanol, methanol, alcohol, ether category. These are simple organic Stimulant. Yeah, right. Yes, sir. No, they are different simple molecules, ether, ethanol, methanol, these are. Okay. But These are those taken simple component ones. structure, those seem like all steroids. Some of our hormones are also steroids. Okay, So sir. like that, isn't that? But in case of forensic science, we only study the potentially poisonous substances. जो नॉन पॉइजनस we generally don't consider because उनका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं होता है या उनका फोरेंसिक सिग्निफिकेंस नहीं होता है. तो सम ऑफ दीज आर ड्रग, जैसे कि कोकेन है, LSD है, तो ये ड्रग्स है.
Amphetamines भी drugs है, barbiturates, sleeping pills में. So here I have put the only that compounds which are having forensic importance. मतलब जिनका कुछ cases आते हैं, क्रिमिनल केसेस आते हैं, FIR होते हैं, जैसे इथेनॉल मिथेनॉल का होता है, कोकेन और LSD या बार्बिट्यूरेट्स के तो होती हैं. तो जिनका जो क्राइम में यूज होता है वही हमने यहाँ पे डाले हैं. Shall we move forward, sir? Okay, sir. Yeah, sure. Yes, sir. Hello, sir. Okay. Yes, So sir. here, sir, lab में what are the challenges faced? So first one is dynamic nature of forensic science. Crime is changing every day. The world is changing every day. So to analyze this evidence is again becomes very difficult because world is changing. So crime is also changing. Criminals are changing. So therefore we have to also change. So dynamic nature of forensic science creates a difficulty or challenge for us to analyze the evidences. Then sample quantity and quality. So many cases in cases we get a very small quantity of sample, a drop of blood or 1 drop of poison or a few drops, छोटा सा ही quantity मिलता है. Again quality means the poison or the some material which is recovered from crime scene, it is adulterated with some other materials. ओके, बिकॉज क्राइम सीन पे कोई क्वालिटी मेंटेन करने के लिए तो जाता नहीं है, वहां पे दूसरी चीजें भी उसमें मिक्स हो जाती है. ओके, जैसे कपड़े पे कुछ मिल गया पॉइजन का ड्रॉप, उसमें और कुछ मिट्टी धूल मिट्टी गया तो उसकी क्वालिटी डिटोरिएट हो जाती है. सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी टफ टू आइडेंटिफाई द पॉइजन फ्रॉम द स्मॉल क्वांटिटी एंड द क्वालिटी. हार्डली यू गेट ए क्वालिटी पॉइजन बिकॉज प्योर सैंपल मिलना मुश्किल है. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज मिक्स विथ सम ह्यूमन बॉडी मटेरियल्स. समटाइम्स इफ यू गेट अ सैंपल ऑफ वॉमिट, ओके, थोड़ा सा वोमिट का सैंपल मिला है आपको और उसमें क्वालिटी हो ही नहीं सकता बिकॉज इट इज मिक्स विद द फूड मटेरियल इन द वोमिट. सो इस तरह से दो प्रॉब्लम आता है एनालाइज करने में. ओके, कि क्वांटिटी कम होती है बहुत बार और क्वालिटी नहीं होती है, यानी मिक्स मटेरियल होता है, मिक्सचर होता है बहुत बार. ओके, सो उसको एनालाइज करना इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ. देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. सो दिस इज अगेन पहले पॉइंट से मैच करता है क्योंकि वर्ल्ड चेंज हो रहा है, क्रिमिनल्स भी चेंज हो रहे हैं, तो उनका वो सिमिलरली जैसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते वैसे क्रिमिनल्स भी उठाते, तो वो अगेन इट बिकम्स वेरी टफ फॉर फोरेंसिक केमिस्ट टू हैंडल द एविडेंसेस. Again, you have to learn the new techniques, you have to adopt the new technologies for the analysis purpose. Then quality assurance, नया टेक्निक्स भी सीखना और साथ में क्वालिटी भी मेंटेन करना है. अगर क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी तो you will not get the results. ओके, रिजल्ट्स नहीं होंगे तो फिर आप कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट इज इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन. नाउ मेरा बिगिनिंग का स्लाइड में आपने देखा होगा फॉरेंसिक साइंस इज नॉट अ सिंगल स्ट्रीम, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस साइंसेस. सो वहां पे इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन चाहिए होता है. इवन दो आई एम ए केमिस्ट, आई नीड हेल्प ऑफ साइकोलॉजिस्ट टू अंडरस्टैंड सम केस ऑफ ड्रग एडिक्ट, और आई मे नीड हेल्प ऑफ लॉ डिपार्टमेंट in our institute. So for handle the legal issues, I may need the help of computer department. Okay, your computer expert, because nowadays we have to work in collaboration, and particularly in forensic science collaboration is needed because यहाँ पे legal angle आता है, psychological angle आता है, and sometimes in cyber crime is involved or some other case is involved, so computer expert की भी मदद लेनी पड़ती है. Then legal and ethical issues. So again, whenever there is a crime, automatically the legal issue will be there. You have to work in the legal framework. In regular chemist अपनी लैब में कुछ भी कर सकता है, किसी भी सैंपल को कभी भी कितना भी क्वांटिटी में लेके काम कर सकता है, बट दिस इज नॉट अलाउड इन फॉरेंसिक साइंस. ओनली जो अलाउड मेथड है वही यूज कर सकते हैं. सपोज आपको एक अल्कोहल बनाना है रेगुलर लेबोरेटरी में, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी केस का एविडेंस एनालाइज कर रहे हैं तो उसके लिए जो अलाउड टेस्ट है वही यूज करना है, आप दूसरा टेस्ट यूज नहीं कर सकते. इफ यू यूज द अनदर टेस्ट, योर रिजल्ट विल नॉट एक्सेप्ट इन द कोर्ट. ओके, सपोज आपने एक पॉइजन आइडेंटिफाई करने के लिए जो प्रोटोकॉल में जो टेस्ट दिया है वो यूज किया, तो रिजल्ट विल बी एक्सेप्टेड इन द कोर्ट. बट उसको छोड़ के कोई और आपने टेस्ट यूज किया जो अलाउड नहीं है लीगली, वो यूज किया, तो आपका रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बाद भी कोर्ट उसको जनरली एक्सेप्ट नहीं करता. तो यू हैव टू वर्क इन द लीगल फ्रेमवर्क. सो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है फॉरेंसिक केमिस्ट के लिए, उसका चैलेंजेस हो जाता है. एंड देन ये सब काम करने के बाद अपना पब्लिक का ट्रस्ट अपहोल्ड करना पड़ता है. सो यू शुड नॉट लूज द ट्रस्ट ऑफ पब्लिक. सो पर्टिकुलरली इन हाई प्रोफाइल केसेस,
अगर आपने एविडेंस सही से एनालाइज नहीं किया तो सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स एंड ऑल न्यूज़ चैनल्स, इस पे सब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. सो ये सब केस न्यूज़ में आने लगता है. तो पब्लिक का ट्रस्ट भी मेंटेन करना है और आपको आपका काम भी करना है. सो यू हैव टू वर्क हार्ड टू मेंटेन द पब्लिक ट्रस्ट. सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड बाय द फॉरेंसिक केमिस्ट. काफी टफ काम होता है. कंक्लूजन्स में इतना ज्यादा ये नहीं करेंगे. सो ओनली आई विल से दैट द इम्पैक्ट ऑफ केमिस्ट्री ऑन द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस इज अनडिनाइबल. बिना केमिस्ट्री के फॉरेंसिक साइंस हो ही नहीं सकता है. अगेन जो चैलेंजेस है, दैट चैलेंजेस कैन बी ओवरकम बाय द विजिलेंट अटेंशन. अगर हम विजिलेंट रहेंगे, अच्छे से एविडेंस केयरफुली कलेक्ट करेंगे एंड विल यूज द इनोवेटिव सॉल्यूशंस, अच्छे इनोवेटिव सॉल्यूशंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद लेंगे. सो डेफिनेटली वी कैन कम ओवर द डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस एंड देयर वी कैन इनहांस द रिलायबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिव आउटकम्स, देयर बाय स्ट्रेंथनिंग द जुडिशियल प्रोसेस. जुडिशियल प्रोसेस स्ट्रेंथन होगा तो ही हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं, जस्टिस की उम्मीद कर सकते हैं. ओके, सो सर यहाँ तक तो जो पढ़ाने का पार्ट था वो था. अभी थोड़ा सा ही जस्ट 2-4 मिनट में हम अपॉर्चुनिटीज का बात कर लेते हैं. एम आई ऑडिबल सर? यस सर, यस सर. ओके, तो ये सब जो था मैंने आपको फॉरेंसिक साइंस के बारे में जैसे भी मुझे समझ में आया आपको बताया. अभी थोड़ा सा इस फील्ड में कौन कौन से सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज है, एम्प्लॉयर्स कौन है, वो आपको पता चलेगा. तो शुरुआत की जो हमारी स्लाइड थी, स्लाइड नंबर 1, वहां पे हमने देखा था कि क्राइम, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक साइंस, जस्टिस, ये सब वो जो शुरुआत की स्लाइड थी. ओके, जहाँ पे वो सीआईडी वाला पोस्टर मैंने लगाया था, वहीं से आपको एम्प्लॉयमेंट का आइडिया आएगा. जहां पे भी क्राइम होता है, whenever there is a crime there will be investigation, and whenever there is investigation there will be forensic science. And so therefore your main job opportunity lies either in the forensic science laboratories or in the investigation laboratory, investigation agencies. So there are many employers. Okay, so the first employer is forensic laboratories. Okay, so across the India there are central forensic science laboratories, regional forensic science laboratories, and the Directorate of Forensic Science. So central forensic science laboratories come under the central government of India, and the DFS also come under the central home ministry. Okay, RFSLs are present across the states. They come under their respective state governments, generally home department. Such type of laboratory might be already present in the West Bengal also, Maharashtra also. So यहाँ पे आप apply कर सकते हैं. Even plain chemist is also accepted in Maharashtra government RFSL. The plain chemistry students, MSc students, can apply for the post of assistant chemical analyzer. I don't know about West Bengal, it is allowed or not. What is the scenario in West Bengal, sir? Sir, no idea, sir. Okay, so in Maharashtra, even I think same will be there. Chemistry person is most highly accepted. So आपके स्टूडेंट्स है वो अपने करियर के बारे में सोच सकते हैं. आप यू कैन थिंक अबाउट द RFSLs और CFSL और DFS एज योर जॉब अपॉर्चुनिटी और फ्यूचर करियर. ओके, तो थोड़ा चैलेंजिंग है बट आप एक नया कर सकते हैं. उसमें भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज निकलते हैं. केमिस्ट्री पर्सन, केमिस्ट्री एज वेल एज बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, उसमें भी जगह निकलते हैं. पर्टिकुलरली DNA एंड फिंगरप्रिंटिंग सेक्शन जो होता है, DNA सेक्शन जो होता है, वहाँ पे बायोलॉजी स्टूडेंट्स, बायोलॉजी मीन्स लाइफ साइंस स्टूडेंट्स ऑल्सो एक्सेप्टेड फॉर द जॉब. महाराष्ट्र में अलाउड करते हैं, CFSL में भी अलाउड करते हैं. ठीक है, तो आप ये सभी लेबोरेटरीज में अप्लाई कर सकते हैं. दूसरा जो एरिया है दैट इज क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज लाइक CBI, NIA, CID, NCB, स्टेट पुलिस. ये सभी एजेंसीज में कुछ पोस्ट रिजर्व होते हैं फॉरेंसिक वालों के लिए. तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं. और पर्टिकुलरली एजेंसीज नाउअडेज साइबर क्राइम्स के लिए बहुत ही उसमें अलग से उसके लिए जगह निकलती है. तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं. डिफरेंट काइंड ऑफ वैकेंसीज आर अवेलेबल देयर. देन अनदर सेक्टर इज फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो है, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग यानी EOW, वहां पे भी इस तरह के फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन या फाइनेंशियल फ्रॉड के जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वहां पे भी बहुत सारे वैकेंसीज अवेलेबल होते हैं. बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ये सभी इसमें काम करते हैं अभी. ठीक है, आप भी जा सकते हैं क्योंकि इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट्स आर एक्सेप्टेड देयर. कंप्यूटर साइंस वाले जा सकते हैं, बायोलॉजी वाले जा सकते हैं, अगेन केमिस्ट्री वाले लोग भी वहां पे जाके काम कर सकते हैं. देन इंश्योरेंस सेक्टर इज देयर. नो, आप सोचेंगे कि इंश्योरेंस सेक्टर में क्या काम है. ओके, फॉरेंसिक साइंस का क्या काम है, क्योंकि इंश्योरेंस का क्लेम एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा, ये फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन पर ही डिपेंड करता है. इन बिगिनिंग में हमने बोला था कि आग लगी या लगाई, आग लग गई तो इंश्योरेंस क्लेम होता है, लगाई गई जानबूझ के
तो इंश्योरेंस का क्लेम जीरो होता है उस केस में, क्योंकि आपने जानबूझ के लगाई। अब कंपनी को कौन बताएगा, हु विल टेल द कंपनी दैट कि वेदर इट इज फायर और आर्सन। इंटेंशनल फायर को आर्सन बोलते हैं, जानबूझ के लगे। सो आर्सन का केस में नहीं मिलता है। सो हु विल टेल द कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी की, ओके जैसे कि फॉर एग्जांपल LIC को कौन बताएगा। सो वो इस तरह के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हायर करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, एंड दे विल सबमिट देयर रिपोर्ट। आफ्टर देयर रिपोर्ट ओनली यू कैन क्लेम द इंश्योरेंस। ओके, तो वहां पे भी बहुत सारे वैकेंसीज होते हैं। अगेन जैसे कि सुसाइड एंड होमिसाइड का केस होता है, आत्महत्या। ओके, सुसाइड का केस में टर्म इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस सुसाइड का केस में क्लेम नहीं होता है, लेकिन मर्डर का केस में होता है, नेचुरल डेथ का केस में होता है। अगर सुसाइड को नेचुरल डेथ बताया तो वो उसका इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक एक्सपर्ट करते हैं, और फिर अगर सुसाइड प्रूव हो गया तो आपका टर्म इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस नहीं मिलता है आपको। ओके, सो उसका क्लेम प्रोसेस में एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करता है, तभी जाके आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी काफी सारे वैकेंसीज निकलते हैं। बैंकिंग सेक्टर में पर्टिकुलरली साइबर फॉरेंसिक के लोगों के लिए वैकेंसीज होती है। और अगेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जस्ट लाइक our college, we are hiring the forensic experts for teaching purpose and administration. Okay, many government universities and colleges, they have many vacancies for the forensic experts for teaching purpose. These are some of the institutes which are providing. आपने बोला होगा कि सर जॉब तो बता दी लेकिन एजुकेशन कहाँ मिलता है। So these are some of the institutes across the India we are providing the forensic science education. National Forensic Science University, it has 10 campuses across the India. Rashtriya Raksha Shakti University, Gandhinagar. Okay, and so many. These 3 institutes belong to government of Maharashtra. Out of this Government Institute of Forensic Science where I am working. Okay, so these institutes are there. This is my institute. Thank you very much.